Namaskar students, I hope you are well at your home. Today we will continue our chapter number 3 Constitutional Design. In this chapter, in our previous class we discussed about the preamble of Constitution of India. The Indian preamble of the Constitution of India is the soul of the Constitution of India. It is the important aspects of the Constitution. We discussed about the about important terms used in the preamble, like the first line of the preamble, we the people of India, हम भारत के लोग. तो the constitution has been drawn up the enacted by the people through their representative and not handed down to them by a king or any outside power. तो we the people of India, हम भारत के लोग, इसका मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला कोई किंग या मोनार्क नहीं था. वी द पीपल ऑफ इंडिया सभी भारत के लोग थे, अर्थात उनके द्वारा अपॉइंट किए गए रिप्रेजेंटेटिव थे. किसी सिंगल पर्सन के द्वारा वो हैंड डाउन या रिटर्न डाउन नहीं था. सेकेंड टर्म इज सावरेन. सावरेन people have supreme right to make decisions on internal as well as external matters. No external power can detect the government of India. तो जो इंडिया के पीपल हैं वो ही अपने ऊपर रोल करेंगे और अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में वो अपने डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है. नो अदर पावर कैन डिटेक्ट. कोई दूसरी पावर या दूसरा कंट्री या दूसरा पर्सन हमें डिटेक्ट नहीं कर सकता, बाउंड नहीं कर सकता, फोर्स नहीं डाल सकता कि आपको ये करना ही होगा. इट इज़ द सॉवरेनिटी और सॉवरेन पावर ऑफ द गवर्नमेंट. थर्ड इज द सोशलिस्ट. सोशलिस्ट इट मीन्स responsible for the society, for the society's welfare. तो wealth is generated socially and should be shared equally by society. Government should regulate and ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities. तो सोसाइटी में जो सोशियो इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज़ हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो वेरिएशन गैप है, उसको गवर्नमेंट कोशिश करेगी कम से कम करने की, रिड्यूस करने की. और जो गवर्नमेंट का रोल है वो सोशल वेलफेयर होगा. सेक्युलर मीन्स citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. Government treats all religious beliefs and practices with equal respect. गवर्नमेंट जो है सभी रिलीजन्स के विश्वास और उनके जो प्रैक्टिसेस हैं उनकी वो इक्वल रेस्पेक्ट करेगी. कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा और पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन. लोगों को ये छूट है कि वो कोई सा भी रिलीजन है वो फॉलो कर सकते हैं. डेमोक्रेटिक मीन्स है द गवर्नमेंट, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वेयर पीपल इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, elect their rulers and hold them accountable. The government is run according to some basic rules and rules are prescribed in the constitution. So India is the democratic country. Republic means head of the state is an elected person and not have a hereditary position. एक राजा का जो हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट का बेटा है, वो प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, बल्कि प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन के थ्रू आना होगा और इलेक्टेड पर्सन होगा. तो इंडिया इज ए रिपब्लिक, बिकम ए रिपब्लिक कंट्री आफ्टर द 26 जनवरी 1950.
The other important terms which is used in the preamble of India, justice. Citizens cannot be discriminated on grounds of caste, religion and gender. Social inequalities have to be reduced. Government should work for the welfare of all, especially of the disadvantaged groups. तो जस्टिस का मतलब है न्याय, सबके साथ में इक्वलिटी लाई जाए। जो सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड वो जो पीपल्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन की जो व्यवस्था की गई वो भी उनके लिए एक जस्टिस था। तो यहाँ पर कोई किसी तरह का रिलीजन बेस्ड, कास्ट बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इट मीन्स ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो ये होगा जस्टिस। लिबर्टी, are there are no unreasonable restrictions on the citizens in what they think, how they wish to express their thoughts and the way they wish to follow up their thoughts in action। तो यहाँ लिबर्टी का मतलब विदाउट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किसी पर लगाए नहीं जाएंगे। इक्वलिटी, equality are the equal, all are equal before the law. The traditional social inequalities have to be ended। ट्रेडिशनल पहले से चले आ रही सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड। जैसे अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया वो इसी के अंडर था। द गवर्नमेंट शुड एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, और सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है वो गवर्नमेंट है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको अफोर्ड करे। एंड फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी मीन्स भाईचारा जिसको हम कहते हैं ब्रदरहुड। तो ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। हम सब ऐसे बिहेव करेंगे जैसे हम सब एक ही फैमिली के मेंबर हैं। और संस्कृत में उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है वसुधैव कुटुंबकम। पूरी पृथ्वी ही हमारा घर है। तो हम कंट्री की बात करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया एज ए मेंबर ऑफ ए सेम फैमिली। नो वन शुड ट्रीट ए फेलो सिटीजन एज इनफेरियर। कोई किसी को इनफेरियर नहीं समझेगा, अपने से नीचा नहीं समझेगा, कोई अपने आप को दूसरे से ऊपर नहीं समझेगा। ऑल आर द फीलिंग्स ऑफ ए ब्रदरहुड। भाईचारे की सब में फीलिंग्स होनी चाहिए। तो दीज टर्म्स आर यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। इन्हीं सभी 10 बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन किया गया। सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं इन्हीं को फॉलो करते हुए हैं। तो इट इज़ द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। एंड लास्ट में प्रीएम्बल ऑफ इंडिया में लिखा है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November, 26th day of November, it means 26 November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ। So students, दिस इज़ द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम बनकर के तैयार हुआ था 1949 में, उसी समय से लेकर के आज तक ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और इन्हीं को फॉलो करते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया है। आज तक प्रीएम्बल में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। केवल एक में 42nd जो अमेंडमेंट था उसमें कुछ वर्ड, एक वर्ड उसमें जोड़ा गया है, सोशलिस्ट वर्ड उसमें ऐड किया गया है। अदरवाइज इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ और ना ही इसमें पार्लियामेंट जो है वो कोई अमेंडमेंट कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। जब तक
पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हो तब तक ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो चेंज नहीं हो सकते। और इसीलिए इसको साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, क्योंकि पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा इन्हीं टर्म्स में है और इन्हीं को फॉलो करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट जो प्रोविजंस हैं वो बनाए गए हैं।